Good morning, students. Today I am going to teach you lesson 4. The topic is From the Diary of Annie Frank. Though I have taught this lesson on online class, but not all students attached to this video. That's why I thought it would be better if I reteach in this video. So this diary was written by Annie Frank. Full name of Annie Frank was Anneliese Mary Annie Frank. Annie Frank was born on 12 June 1929 and she died February or March. It is not clear. February or March in 1945. Annie Frank was a Jewish girl. She was a Jew, जिसको हिंदी में यहूदी बोलते हैं. Her father was Otto Frank and this diary was given to her on 12th June 1942 on her birthday. So now we will start. Anneliese Mary Annie Frank was born on 12 June 1929. February or March 1945 she died. She was a German born, means she was born in Germany. She was born in Germany. Who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of Netherlands in World War II. In World War II, Germany occupied Netherlands and the ruler of Germany was Hitler. Okay, Hitler came to power in 1932. Okay, and when Germany captured, occupied Netherlands, then especially it was a great problem for the Jews. For the Jew people, it was a critical time. They were tortured physically and mentally. So they had to choose some hiding places to save themselves from the cruelty of Nazism. So, Amsterdam, where was the hiding place? The hiding place was in Amsterdam. Amsterdam is in Western Netherlands. Amsterdam, where in Western Netherlands. Okay, so in a hiding place in Amsterdam, Annie, along with her family and 4 friends, secretly she hid there. In her family, there were 4 members: father, mother, Annie, and her elder sister. We will read about them later. Okay. Her family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power in Germany. I hope in class 9th, in history chapter, I hope in 3rd chapter of history, you might have studied about Nazism and Hitler. So when Nazi came to power in Germany,
जब नाजी ने जर्मनी में सत्ता में आया तो क्या हुआ ना, वो लोगों ने स्पेशली फॉर द क्रीपल, फॉर द हैंडीकेप, फॉर द जीव्स, दे प्रूव्ड कर्स, वो एक श्राप साबित हुए। इट मीन्स Nazi people tortured them. So when Nazi gained power in Germany, but were trapped when Nazi occupation extended into the Netherlands. इसलिए आप पढ़े होंगे क्लास 9th में, जैसे कि मैंने बताया हिस्ट्री में, हिटलर ने सिर्फ चाहते थे मेरे को अच्छा योद्धा चाहिए, जो फिजिकली स्ट्रांग था उनको पसंद करते थे, और जो फिजिकली वीक थे यानी जो हैंडीकेप्ड थे उनको वो मर्डर कर दे रहे थे। सो धीरे धीरे जर्मनी ने क्या किया ना, नेदरलैंड पर कब्जा किया, और नेदरलैंड पर कब्जा करने के बाद आज परकशंस अगेंस्ट द जीविस। व्हाट इज परकशन? परकशन मीन्स ऑपरेशन, दमन, अत्याचार, सताना। आज percussions against the Jewish population increased. The family went into hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank's office building. Otto Frank, जो कि एनी फ्रैंक के फादर थे, वो जिस ऑफिस में काम कर रहे थे वो अंडरग्राउंड रूम में अपना परिवार जाकर के छिप गया। ओनली टू एस्केप फ्रॉम द क्रुएलिटी, ओनली टू एस्केप फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ नाजीजिम। नाजीवाद के क्रूरता से, अत्याचार से अपने को बचाने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, दे वे आर बिट्रेड, उनको धोखा दे दिया गया। उनके साथ में नाइंसाफी हुआ। कैसे उनको धोखा मिला ना, आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, वो लोग 2 साल रहे हाइडिंग में छिप करके। द ग्रुप वॉज बेट्राइड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसेंट्रेशन कैंप सिस्टम वेयर एनी डाइड ऑफ टाइफस। तो उनके साथ में धोखा हुआ और उनको किसी भी तरह से कंसेंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया। तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज कंसेंट्रेशन कैंप? व्हाट इज कंसेंट्रेशन कैंप? Concentration camp was a camp where mass murder of Jews. There was mass murder. What is mass murder? मास मीन्स एक बार में अनेक, बहुत सारे लोगों को, जो आजकल हम लोग न्यूज़पेपर में कभी कभी पढ़ते हैं कार्नेज। कार्नेज मीन्स नरसंहार। तो उसी प्रकार का एक साथ में अनेक लोगों को, हजार हजार लोगों को मार दिया जा रहा था। स्पेशली दे वे आर ज्यूस, यहूदियों को। अंडर नाजी रेजिम्स, नाजी के शासनकाल में यहूदियों को एक साथ में हजार हजार मार दिया जा रहा था। ये पीरियड क्या था ना, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1941 टू 45। ये जो पीरियड था 1941 से लेकर के 1945 के बीच, ये क्रूएलिटी ज़्यादा इंक्रीज हो गया था। और यू कांट बिलीव 6 मिलियंस यूरोपियन ज्यूस were murdered in concentration camp. There was not a single concentration camp. There were so many concentration camps. अगर हम लोग जोड़ दिया जाए तो लगभग 6 मिलियंस यूरोपियन ज्यूस को वो कंसेंट्रेशन कैंप में मार दिया गया था। सो यू कैन इमेजिन व्हाट ए क्रूएलिटी ऑफ द नाजिज्म, not only in Germany but also in the neighboring states, also in Netherlands. So okay, तो वे लोग को क्या किया गया, धोखा से एक कंसेंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया।
जिस कंसेंट्रेशन कैंप में आनी फ्रैंक की मौत हो जाती है। और किसके कारण ना, वो एक बीमारी के कारण। सो वो बीमारी का नाम क्या है? टाइफस। तो टाइफस एक डिजीज है जिसमें हाई फीवर होता है, हाई फीवर होता है, और स्किन रैश, स्किन में रेड रेड पड़ जाता है, लाल का धब्बा हो जाता है और हाई फीवर होता है। दैट इज कॉल्ड टाइफस। तो टाइफस बीमारी के कारण मरता है। कहां पर? इन बर्जन बेल्सन। बर्जन बेल्सन। व्हाट इज बर्जन बेल्सन? बर्जन बेल्सन एक नाजी का कंसेंट्रेशन कैंप, जिस कंसेंट्रेशन कैंप का नाम था बर्जन बेल्सन। सो बर्जन बेल्सन was a Nazi's concentration camp in which Anne Frank died in the disease of typhus. Clear? So मार्गट, तो उनके एक सिस्टर थी, एल्डर सिस्टर। मैंने बताया था 4 मेंबर्स थे, फादर, मदर, एल्डर सिस्टर एंड एनी फ्रैंक। तो उनके एल्डर सिस्टर का नाम क्या था? मार्गट। मार्गट, एल्डर सिस्टर ऑफ एनी फ्रैंक। सो मार्गट वाज द एल्डर सिस्टर ऑफ एनी फ्रैंक. She also died in that Bergen-Belsen concentration camp, and due to the same disease, that disease was typhus. It means both the sisters died of typhus in Bergen-Belsen concentration camp. तो वहां से सिर्फ एक व्यक्ति बचे थे, वो थे उनके पिताजी, जिनका नाम था ओटो फ्रैंक. ओके, हर फादर ओटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप. उस ग्रुप में जितने लोग रह रहे थे वो कंसेंट्रेशन कैंप में, उसमें से सिर्फ एक व्यक्ति जीवित लौटे, और वो व्यक्ति थे ओटो फ्रैंक, फादर ऑफ एनी फ्रैंक. ही रिटर्न्ड टू एम्स्टर्डम. वो एम्स्टर्डम में वापस आए आफ्टर द वार एंडेड, वार खत्म होने के बाद, टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड. लेकिन फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली, एनी एंड हर सिस्टर मार्गट डाइड ऑफ टाइफस, बट फॉर्चुनेटली द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक वाज सर्वाइव्ड. वो बच गया था, उनका डायरी बच गया था, जिस डायरी के कारण ये खुलासा हो सका कि कैसे उनको टॉर्चर किया जा रहा था, कैसे ड्यूरिंग नाजिस रेजिम हाउ स्पेशली द ज्यूस were physically and mentally tortured in the concentration camp, how they were starved, how they lived under pressure. So everything was written in details in the diary of Anne Frank. Okay, convinced that it was a unique record, he took action to have it published in English under the name of Diary of a Young Girl. He tried his level best. Who? Otto Frank, father of Anne Frank. उन्होंने पूरा प्रयास किया वो डायरी को पब्लिश करने के लिए, प्रकाशित करने के लिए इंग्लिश में, और अंत में वो सफल रहे. और वो जो डायरी किस नाम से पब्लिश हुआ? द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से. द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल के नाम से वो डायरी को अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया. And the total credit goes to Otto Frank because by his great effort, पूरी प्रयास के कारण. ओके, ये जो डायरी, जैसे कि मैंने बताया था, दिस डायरी वाज गिवन टू हर ऑन 12 जून 1942.
उनके जन्मदिन पर यह डायरी उनको मिला था। एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट ऑफ हर लाइफ from 12 June 1945 until its final entry of 1st August 1944। तो उन्होंने डायरी लिखना कब से शुरू किया? 12 जून 1942। 12 जून 1942 से शुरू कर दिया डायरी लिखना। और क्रॉनिकल्स मीन्स इन ए सीरीज, नट की आज लिखेंगे, आज मंडे को लिखेंगे, फिर उल्टा संडे को लिख देंगे, नहीं, इन ए सीरियल वे, क्रोनोलॉजिकल वे, इन ए सीरीज, सीरियली। और लास्ट को कब लिखे थे? 1 अगस्त 1944। इट वॉज द लास्ट पेज ऑफ द डायरी रिटन बाई एनी फ्रैंक। Clear? It was eventually translated from its original Dutch because it was written in Dutch. The language of Denmark is called Dutch. तो ये डच भाषा में था और डच से इसको क्या किया गया ना, ट्रांसलेट किया गया इनटू डिफरेंट लैंग्वेज, इसको ट्रांसलेट किया गया था। तो ये ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इनटू मेनी लैंग्वेज एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक्स। और जो सबसे ज्यादा बिकने वाला, सबसे ज्यादा पढ़ने वाले किताबों से एक बन गया द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल रिटेन बाई एनी फ्रैंक। ओके, डिस्क्राइब्ड, इसका थीम क्या है? इसके बाद किसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है? डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ ए मैच्योर एंड इनसाइटफुल माइंड, दो शी वाज नॉट एन एडल्ट एट दैट टाइम। उस समय उनका माइंड परिपक्व नहीं था, वो जवान नहीं थी, लेकिन फिर भी इतनी यंग एज में वो बहुत सारे मैच्योर की बात बोली थी, परिपक्वता के साथ वो लिखी थी। The work of mature and insightful. Insightful means deep perception, गहरी पहुंच, उनके पहुंच बहुत अंदर तक था। The diary provides an intimate examination of daily life. What was the condition of daily life of the Jews in the concentration camp under Nazi occupation? नाजी के शासन काल में कंसंट्रेशन कैंप में कैसे लोगों ने अपना दिनचर्या बिता रहे थे, उसके बारे में डीपली, डेप्थली ये डिस्क्राइब किया गया है। Anne Frank has become one of the most renowned means famous and discussed of the Holocaust victims. But what is Holocaust? The same thing, the concentration. Holocaust means वही concentration camp में किस तरह एक साथ में ज़्यादा लोगों को मारा जा रहा था. That was also called Holocaust. So what was the condition of the people in the concentration camp? How they were tortured physically and mentally, how they had to live without food and water, how they died in a pathetic condition, ये टोटल डिस्क्राइब किया गया है ये डायरी में। Now it is clear. Now we will start the topic. Okay. Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. Who is the speaker? Anne Frank. क्योंकि Anne Frank अपने खुद ही लिख रही है। तो स्टूडेंट्स, you write diaries daily, but your diary is completely different from the diary of Anne Frank. Why? Because you write the school diary. What you read, what your teachers give you as homework, everything you mention in your diary.
But the diary of Annie Frank is a personal diary. It was not just like the school and college diary. It was a personal diary. और पर्सनल डायरी कब लिखा जाता है? एट बेड टाइम, दिन के अंत में जब आप सोने के लिए जाते हो, उस समय आपने अपने दिन भर में क्या किया हुआ है, व्हाट हैज हैपेंड थ्रू आउट द डे, यू मेंशन इन द डायरी. और ये जो डायरी होता है बेटा, वो दोस्त की तरह, जिस तरह आप लोग अपने दोस्त से कोई बात छिपाते नहीं हो, उसी प्रकार का एवरीथिंग यू मेंशन, वेदर इट इज इन योर फेवर और इट इज नॉट इन योर फेवर. चाहे तुम्हारी अच्छाई हो या बुराई हो, एवरीथिंग यू मेंशन इन द डायरी. सो दैट इज कॉल्ड पर्सनल डायरी. सो इट इज माई पर्सनल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अगर आप किसी का पर्सनल डायरी को देखें तो उसको छूना नहीं, तो उसको यू विल नॉट टच, बिकॉज इट इज पर्सनल डायरी. ओके, सो राइटिंग डायरी लिखना एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है, एक अजीब सा अनुभव है. फॉर समवन लाइक मी, फॉर समवन लाइक एनी फ्रैंक. Not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on, neither I nor anyone else will be interested in the musing. Musing means deep thought of a 13-year-old school girl. एक 13-year स्कूल गर्ल के एक लिखी हुई डायरी पर आप लोग क्या विश्वास करोगे? एक 13 ईयर में बच्चा जब टीन एज में रहता है, उसका माइंड उतना डेवलप नहीं होता है, तो एक जो माइंड मैच्योर्ड नहीं हुआ है, तो प्री मैच्योर्ड बच्चों का डायरी में वो क्या लिख सकते हैं? यानी इट मीन्स शी थॉट दैट माई डायरी विल बी अंडर एस्टिमेटेड, माई डायरी विल नॉट बी रेस्पेक्टेड, माई डायरी विल नॉट अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द रीडर्स. So thinking so, she was feeling nervous because it was the strange experience of writing the diary. Oh well, it does not matter. कोई बात नहीं. I feel like writing. लेकिन जी करता है मैं डायरी लिखूं. तो I feel like writing. I feel like writing means I feel like राइटिंग. जी करता है मैं लिखूं, ये एक फार्मूला है ट्रांसलेशन का. आई फील लाइक ईटिंग, जी करता है कुछ खा लूं. आई फील लाइक वॉचिंग टेलीविजन, जी करता है टीवी देख लूं. सो इट इज़ द फार्मूला. सो लेकिन फिर भी मैं जानती हूं कि मेरे डायरी को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, फिर भी जी करता है कि मैं लिख लूं. आई फील लाइक राइटिंग and I have an even greater need to get all the kinds of things off my chest, ताकि मेरे मन के बात को I can express, I can put forth. और जब तक मेरे बातों को मैं नहीं रख सकती हूँ, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा. जैसे कि सपोज दैट कभी कभी हमारा जीवन में भी ऐसा घटना आता है, जब तक हमारे बातों को हम दूसरे से शेयर नहीं कर पाते हैं, तब तक हमें संतुष्टि नहीं मिलता है. क्लियर? Then second stanza, paper has more patience than people. Second paragraph में क्या कहते हैं कि paper has more patience than people, and it is the truth, students. जैसे कि you make friendship with other students, तो क्या करते हैं ना, sometimes they react over your action, क्योंकि where there is action there is reaction. अगर वे लोग ने if they don't agree to your statement, to your words, then what they do, they react. तो जब रिएक्ट करते हैं, यू डोंट लाइक, आपको पसंद नहीं आता है, आपको अच्छा नहीं लगता है. जैसे कि जब कभी आपके मदर भी रिएक्ट करती हैं, फादर भी रिएक्ट करते हैं, आपके टीचर्स भी रिएक्ट करते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता है. इट इज़ द नेचर ऑफ ए ह्यूमन बीइंग. बट पेपर क्या है? पेपर हैज नो रिएक्शन. तो इसीलिए कहा गया है पेपर हैज मोर पेशेंस. पेपर के पास ज़्यादा सहन शक्ति है, इट डज नॉट रिएक्ट. इसीलिए एनी फ्रैंक ने अपने डायरी को सबसे ट्रू फ्रेंड बनाई. दैट्स वाई एनी फ्रैंक चोज हर डायरी एज हर ट्रू फ्रेंड. व्हाई डू यू नीड ए ट्रू फ्रेंड? टू शेयर आवर फीलिंग्स, टू शेयर आवर हैप्पीनेस,
to share our sorrows. तो इसीलिए though there were family members, though she had 4 friends, but she did not trust on anybody to share her internal feelings, to share her real feelings, to share all her feelings coming out from her heart, depth heart. So that's why she chose her diary as her true friend and she named it as Kitty. और उसका नाम क्या रख दी? किट्टी. I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed. So at that time when she was in a hiding place, when she was in a concentration camp, वो हमेशा डिप्रेस में रहती थी, तनावपूर्ण रहती थी. And was sitting at home with my chin in my hand. कभी कभी आप लोग भी बैठते हो ठुड़ी पर हाथ रख करके इस तरह. It means you are in a musing mode. Musing means brooding, चिंतन, गहरी चिंता में आप डूब जाते हो. बोर्ड, बोरिंग भी लग रहा था. And listless, I was sad, wondering whether to stay in or go out. अंदर रहूं यानी जो हाइडिंग प्लेसेस के अंदर में रहूं या बाहर जाऊं. जैसे कि आप लोग अभी लॉकडाउन है, आप लोग कभी कभी सोचते हो कि क्या मार्केट थोड़ा चला जाऊं कि रह जाऊं. सो सच टाइप ऑफ थिंकिंग कम टू योर माइंड. आई फाइनली स्टेड वेयर आई वाज ब्रोडिंग. मैंने हाइडिंग प्लेस के अंदर में रही और चिंतन करने लगी. यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस and since I am not planning to let anyone else read this stiff backed notebook. और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे ये जो नोटबुक, जो डायरी है स्टिफ्ड, जो मोटा वाला कवर वाला, तो ये कोई ना पढ़े. रेफर टू आज ए डायरी. मैंने इसको क्या कर दिया, यानी ये जो स्टिफ बैक्ड नोटबुक को मैंने इसको डायरी मान लिया. एंड वोट मेक ए बिट डिफरेंस फ्रॉम ए रियल फ्रेंड. इट मीन्स आई मेड फ्रेंडशिप विथ द डायरी. My diary became my real friend. My diary became my true friend. It probably won't make a bit of difference. There was no difference between a friend and my diary. Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. मैंने क्यों डिसाइड की, मैंने क्यों डिटरमाइंड की कि एक डायरी को रखने के लिए? Do you know, I don't have a friend. मेरे पास दोस्त नहीं है. लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, सिंस नो वन विल बिलीव दैट ए 13-year-old गर्ल इज कंप्लीटली एलोन इन द वर्ल्ड. क्योंकि जब वो कोई बोलते हैं कि भाई मेरे कोई दोस्त नहीं है, तो कुछ लोग सोचे होंगे क्या इसका मतलब एक 13-year-old गर्ल की क्या दुनिया में कोई नहीं थे? शी वाज ऑल एलोन. क्या बिल्कुल वो अकेली थी? एंड आई एम नॉट. नो, I have loving parents and a 16-year-old sister. मैंने 3 years. Margaret was 3 years older than Annie. So parents थे, loving parents थे, उसके elder sister थी. I have, yes, and there are about 30 people I can call friends. और वो जो hiding places में near about 30 people थे और उनको भी दोस्त कहा सकती थी. I have a family, loving aunts, and a good home. No, on the surface, I seem to have everything except my one true friend. I had everyone, I had everything, but I had nothing. सब कुछ मेरे पास था, लेकिन लग रहा था, it seemed I had nothing. किसके बिना? Due to lack of a true friend. And what was the reason? I don't know. हो सकता है कि it was the fault of Annie. She didn't have faith on anyone. She didn't trust anyone. But it was the fact. Fact तो यही था. किस पर वो विश्वास नहीं करती थी, चाहे वो इसकी कमी थी, लेकिन बात यही था. इसीलिए she thought that she had no true friend. All I think about when I am with friends is having a good time. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things.
We don't seem to be able to get any closure, and that is the problem. The problem क्या था, रियल प्रॉब्लम क्या था कि हम शेयर नहीं कर पा रहे थे. मे बी इट इज माई फॉल्ट, जैसे कि मैंने बताया. एनी खुद एक्सेप्ट करती है, एडमिट करती है, कबूल करती है. मे बी हो सकता है कि इट इज माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर. कन्फाइड मीन्स ट्रस्ट. हम लोग एक दूसरे पर कन्फाइड नहीं कर पा रहे थे, हो सकता है. इट वॉज द प्रॉब्लम. हम लोग एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते थे. इन एनी केस दैट इज जस्ट हाउ थिंग्स आर, and unfortunately they are not liable. Liable means reasonable to change. This is why I have started the diary. The question may come, why did Ani decide to start writing a diary? Because though she had everyone, she had loving parents, elder sister, about 30 friends who were living with her, and everybody was with her, but she felt lacking of a true friend. She didn't trust anyone with whom she could share her feelings. She could share her internal desire. That's why. And another thing, she thought paper has more patience than human. So all the things behind the writing of her diary by Anne Frank. To enhance the image of this long-awaited friend in my imagination, I don't want to jot down means write down the fact in this diary the way most people would do. जैसे कि सब कोई लिखते हैं, मैं वैसे नहीं लिख रही थी भाई. Her diary was completely different from others. Why? But I want the diary to be my friend. क्योंकि कोई डायरी लिखता है डायरी समझ करके, लेकिन वो डायरी समझ करके नहीं लिख रही थी. वो अपने दोस्त समझ करके अपने इवेंट्स को, अपने फीलिंग्स को शेयर कर रही थी. सो इट वॉज द डिफरेंस बिटवीन एनी फ्रैंक एंड अदर पीपल. एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किट्टी. सो व्हाट वाज द नेम ऑफ द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक? किट्टी. Yes. Since no one would understand a word, कोई नहीं एक भी शब्द समझ सकता है, of my stories to किट्टी, जो मैं किट्टी के साथ लिखती हूँ, किट्टी को शेयर करती हूँ. If I were to plong right now, प्लॉन्ग मतलब फॉल अब्रप्टली. अगर एकाएक शुरू हो जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा. सपोज दैट अभी महाभारत का एपिसोड चल रहा है या रामायण का एपिसोड चल रहा था, अचानक एक बीच से आप लोग देख लोगे तो पता नहीं चलेगा अगर आपके पास में कोई आइडिया नहीं हो तो. हम लोग जानते हैं प्रीवियसली हमारे पास में वी हैव सम नॉलेज आइदर फ्रॉम टेलीविजन और फ्रॉम स्टोरी बुक्स और फ्रॉम मिथोलॉजी और फ्रॉम आवर पेरेंट्स. कहीं ना कहीं से हम लोगों को कुछ आइडिया है रामायण या महाभारत में, जिसके कारण अगर बीच में भी हम लोग देख लेते हैं तो वी नो समथिंग. अगर कोई एक ऐसा बुक, कोई एक ऐसा सीरियल जो कभी आप देखते ही नहीं हो, अचानक देखोगे बीच से, तो यू कांट अंडरस्टैंड. तो इन द सेम वे एनी कह रही है, अगर मैं एकाएक कहानी को शुरू कर दूं, बता दूं मेरे लिख के बारे में, तो यू विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ए लिटिल बिट. आपको थोड़ा सा भी समझ में नहीं आएगा. सो इट वुड बेटर या आई हैड बेटर, अच्छा होगा प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ. तो सबसे पहले बेहतर होगा अगर मैं थोड़ी सा अपने बारे में ब्रीफ मतलब संक्षेप, स्केच, विवरण अगर बताता हूं तो ऑफ माई लाइफ. मच आज आई डिसलाइक डूइंग सो. Annie did not like to share her lively events with anyone, but without knowing, you can't know anything regarding that diary. तो क्या बता रही है? My father, it means Annie's father, the most adorable father, adorable, respectable, पूजनीय, आदरणीय. और बेटा पेरेंट्स हमेशा एडोरेबल होते हैं. पेरेंट्स आर ऑलवेज एडोरेबल, टीचर्स आर ऑलवेज एडोरेबल. तो वो कह रहे कि माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन.
अरे ऐसा फीलिंग्स होना चाहिए, सबके मन में ऐसा होना चाहिए कि मेरे पिताजी जैसा पूजनीय कोई तो दुनिया में हो ही नहीं सकते हैं, और ये फीलिंग्स होना चाहिए सबके पास। और ये फीलिंग्स एनी फ्रैंक के पास में भी थी। He didn't marry my mother until he was 36. It means at the right age, at the age of 36, he married and she was 25. जब उन दोनों का शादी हुआ उस समय फादर का एज था 36 और मदर का एज था 25। My sister Margaret was born in Frankfurt in Germany in 1926. तो मार्गरेट का जन्म कब हुआ? एल्डर सिस्टर, मार्गरेट वाज एल्डर सिस्टर 1926 में। और उनका जन्म क्या हुआ? आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड 12 जून 1929। मार्गरेट जन्म हुआ 1926 और एनी 1929। कहाँ पर? फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट में दोनों का जन्म हुआ। माई मदर एडिथ होलैंडर फ्रैंक, फादर कौन थे? ओटो फ्रैंक। मैंने बताया था फादर ओटो फ्रैंक, फादर ओटो फ्रैंक और मदर एडिथ होलैंडर फ्रैंक। I have already discussed there were 4 members. Her family was consisted of 4 members. देखो कंसिस्ट ऑफ भी कर सकते हो या कंप्राइज का भी प्रयोग कर सकते हो। Her family comprised 4 members. Father Otto Frank, mother Edith Hollander Frank, elder sister Margaret who was born in 1926, and she herself Annie who was born in 1929. यानी 4 members. Okay. So in September, while Margaret and I were sent to Aachen to stay with our grandmother. तो मेरे क्या हुआ ना, मम्मी और पापा दोनों चले गए हॉलैंड चले गए, दोनों फादर एंड मदर। और हम लोग को कहाँ भेज दिया गया? एचेन, हमारे ग्रैंड मदर के पास भेज दिया गया। इट मीन्स वी स्टार्टेड लिविंग विथ आवर ग्रैंड मदर while my father and mother went to Holland. Clear? Margaret went to Holland. Margaret, my elder sister, वो हॉलैंड चले गई। कब? दिसंबर में। वे लोग कब गए थे? सितंबर में। इनको कब ले लिए? दिसंबर में। एंड आई फॉलोड इन फेब्रुआरी। और एनी कब गई? फेब्रुआरी में। क्लियर? बोथ पेरेंट्स वेंट टू हॉलैंड इन सितंबर, मार्गरेट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, एंड एनी वेंट टू हॉलैंड इन फेब्रुआरी। When I was plunked down means put down, जब मुझे रख दिया गया on the table as a birthday present for Margaret. मार्गरेट के लिए मैं एक तोहफा बन करके हॉलैंड मुझे भेजा गया। Because she was alone, so that she would play with me and she would not feel bored. तो उनकी बोरियत को हटाने के लिए, बोरिंग को ख़त्म करने के लिए तो मुझे एक गिफ्ट के तहत हॉलैंड में भेज दिया गया। I started right away at the Montessori nursery school. तो मेरा एडमिशन मॉन्टेसोरी नर्सरी स्कूल में हुआ। I stayed there until I was 6. 6 साल तक मैंने मॉन्टेसरी स्कूल में रहा। कहाँ? हॉलैंड में। At which time I started in the first form. और 6 साल की उम्र में मैंने क्लास स्टैंडर्ड 1 में पढ़ रही थी। So at the age of 6, Annie Frank was studying in standard 1 in a Montessori school in Holland. In the 6th form, my teacher was Mrs. Cooperus, the headmistress. तो मोंटेसोरी स्कूल में उनका टीचर भी थी वो, प्लस हेडमिस्ट्रेस भी। मिसेस कूपेरस, जब वो 1 स्टैंडर्ड में थी, एट द एज ऑफ 6। At the end of the year, we were both in tears as we said a heart-breaking farewell. दुर्भाग्य से हम लोग को वहाँ से जाना था, इसीलिए हमारा वो अंतिम साल था। When it was the departing time, जब जुदाई का वक्त हुआ, I was in tears, मेरे आंख में आंसू थे, and my headmistress, Mrs. Cooperus, was also in tears. हम दोनों की आंखों में आंसू थे।
It means there was a attachment, there was a great bondage between कुपेरस एंड आनी। दोनों के बीच में गहरी नाता हो गया था, रिश्ता बन गया था, रिलेशन बन गया था। ओके, इन द समर ऑफ 1941 का समर मतलब वही मई एंड जून समर, ग्रैंड माँ फेल इल, ग्रैंड माँ फेल इल। बिफोर कमिंग टू हॉलैंड, वेयर डिड दे लिव? दे लिव्ड विथ ग्रैंडमा। यानी ग्रैंडमा और एनी के बीच में बहुत गहरी रिश्ता था। दे लव्ड ईच अदर, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। तो 1941 के गर्मी के मौसम में उनके दादी माँ बीमार पड़ गई एंड हार्ड टू हैव एन ऑपरेशन, और उनका ऑपरेशन हुआ। सो तो 1941 का बर्थडे पास्ड विदाउट सेलिब्रेशन। जब कोई घर में बीमार हो, उनका ऑपरेशन हो, सो यू कांट सेलिब्रेट। तो सेलिब्रेशन क्या होता है? सेलिब्रेशन इज ए मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस। तो जहाँ दुख है, जहाँ गम है, वहाँ पर खुशी का कोई मौका नहीं है। तो इसीलिए दैट वाज द रीजन दे डिडंट सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ एनी फ्रैंक इन द समर ऑफ 1941। यानी 1941 में जो उनका बर्थडे है, उनको सेलिब्रेशन नहीं किया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन 1942 जनवरी 1942 में ग्रैंडमा डाई, मर गए। ओके, नो वन नोज हाउ ऑफेन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। कोई नहीं जानते हैं मैं उनको कितनी प्यार करती थी और मुझे कितना याद आती थी। I have already discussed, I have already told you that there was a great attachment between grandma and Annie. This birthday celebration, अच्छा 1942 में ये भी सेलिब्रेशन नहीं हुआ क्योंकि घर में मरे हुए थे। तो वो लोग क्या किए, फैसला किए, इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर एंड ग्रैंडमास कैंडल वाज लीट एलंग विद दैट। तो इसीलिए मेरे जन्मदिन पर हम लोग सब मिलकर के हमारे दादी माँ के लिए कैंडल जलाए, उनके आत्मा की शांति के लिए। We prayed God to give eternal peace to the soul of our grandma by lighting candle, कैंडल जला करके उनके आत्मा को शांति के लिए हम लोग प्रार्थना किए। तो इन द सेम वे 1942 celebration did not celebrate. Okay. The four of us are still doing well. तो हम लोग 4 मेंबर थे, फादर, मदर, मार्गरेट, एनी। And that brings me to the present day of 20 June 1942 and the solemn dedication of my diary. अब डायरी के साथ में उनका अटैचमेंट हो गया। तो डायरी में क्या लिख रहे हैं? Yes, we should know. Saturday 20 June 1942, it means on 20 June 1942 को वो इस डायरी को लिखी थी। Dearest Katie, our entire class is quaking in its boots. Quaking in its boots means shaking with fear and nervousness. All my classmates were nervous. All the classmates were afraid. Why? The reason, what was the reason? Of course, is the forthcoming meeting with the teachers, in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. यानी ये रिजल्ट का दिन था, किसको प्रमोशन मिलेगा, किसी को उसी में डिटेन कर दिया जाएगा। तो जब रिजल्ट की बात आता है तो जनरली चीज़ है, हम लोग का दिल के धड़कन बढ़ जाता है, बेचैनी बढ़ जाता है। तो दैट थिंग हैपेंड विथ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दैट क्लास ऑफ एन। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, आधे क्लास तो बाजी लगाने लगे। GN एंड आई, एक स्टूडेंट था GN और आई मीन्स एनी, लाफ आवर सेल्फ सिली एट द 2 बॉयज बिहाइंड अस, क्योंकि उन दोनों के पीछे में 2 लड़के थे, एक का नाम था CN और एक का नाम था जैक्यूस, हु हैव स्टेक्ड देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग्स ऑन देयर बेड। अपने बाजी में पूरे पैसा लगा दिए, जितना हॉलीडे के लिए बचा करके रखे थे सारे पैसा को अपने बेट में लगा दिए। क्या कि कौन पास करेगा, कौन पास नहीं करेगा, किसको प्रमोशन होगा, किसको डिटेन होगा। यू आर गोइंग टू पास,
फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से लेकर के रात तक यही चल रहा था। यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट गोइंग टू पास, यस यू आर गोइंग टू पास, आई एम नॉट गोइंग टू पास, इन दिस वे। इफ यू आस्क यस, नॉट, नो आई एम नॉट, इवन जीएस प्लीडिंग ग्लांसेस, जीएस का भी प्लीडिंग ग्लांसेस मीन्स डिस्कशन एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट, और मेरे तो गुस्सा फूट रहा था। कांट काम देम डाउन, मैं उनको काम नहीं कर पा रही थी। एवरीबडी वॉज डिस्कसिंग बिकॉज दे वे आर बेटिंग। इफ यू आस्क मी, अगर आप मुझे पूछोगे तो एनी कह रही है, देर आर सो मेनी डॉमीज दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। बहुत सारे बच्चों को तो फेल कर देना चाहिए। इट वॉज द ओपिनियन ऑफ एनी, बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ। लेकिन धरती पर टीचर्स क्या होते हैं? अनप्रेडिक्टेबल, जिनका कोई पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आज के समय अलग है। अगर आपके किसी सब्जेक्ट में कम मार्क्स आ जाते हैं तो आप लोग चैलेंज कर लेते हो, सर वी वांट टू गो थ्रू द कॉपीज, हम लोग कॉपी देखना चाहते हैं। यू गो टू द प्रिंसिपल ऑफिस, यू स्टार्ट कंप्लेनिंग, यू कंप्लेन टू योर पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स आ जाते हैं पिटिशन लिख करके कि भाई हमको चाहिए, कॉपी देखना चाहते हैं। या बोर्ड में भी आप चैलेंज कर सकते हो, बट दैट टाइम वाज कंप्लीटली डिफरेंट। नोबडी डेयर्ड टू फेस द टीचर, नोबडी डेयर्ड टू आस्क एनी क्वेश्चन, टू गो अगेंस्ट द टीचर्स। टीचर के तो खिलाफ में किसी को बोलने की कोई हिम्मत नहीं था। तो इसीलिए जो डिसीजन टीचर का था, दैट वाज द फाइनल डिसीजन। इसीलिए टीचर के बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं होता था, कोई पूर्वानुमान नहीं कर पा रहे थे। आई एम नॉट सो वरीड, लेकिन मैं ज़्यादा वरीड नहीं थी अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स, मेरे गर्ल फ्रेंड्स के बारे में, एंड माई सेल्फ। क्यों? वेल मेक इट, हम लोग अच्छा किए थे, एग्जाम दिए थे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स। अगर किस में मुझे डाउट था वो मेरा मैथ्स। एनीवे, खैर, ऑल वी कैन डू इज वेट। हम लोग क्या कर सकते हैं? वी कांट डू एनीथिंग, वी कैन डू नथिंग एक्सेप्ट वेटिंग। तो हमारे पास में क्या था? इंतजार के सिवा कुछ तो नहीं था, इसलिए बेहतर इंतजार करना था। Until then we keep telling each other not to lose heart। इसीलिए हम लोग एक दूसरे को क्या बोल रहे थे? हिम्मत रखो, पेशेंस रखो। दो एवरीबडी was afraid of, सब कोई डरे हुए थे, सब कोई टेंशन में थे, लेकिन ऊपर से हम लोग बोल रहे थे कि चलो हिम्मत रखा जाए। I get along pretty well with all my teachers। सभी टीचर्स के साथ एनी का रिलेशन बहुत अच्छा था। यस, मिस्टर केसिंग, और एक टीचर थे बेटा, मिस्टर केसिंग वाज हर मैथ टीचर, मैथ टीचर मिस्टर केसिंग। तो एनीवे, ऑल वी कैन डू इज यस, हु टीचर्स मैथ्स वाज एनोयड विथ मी फॉर एजेस। बहुत दिनों से वो मेरे से बहुत रूठे हुए थे, नाराज थे। रीजन जानते हो? बिकॉज आई टॉक्ड सो मच। इट मीन्स Annie was a talkative girl। Annie was a talkative by nature। वो स्वभाव से बातूनी थी, जिसके कारण हर मैथ टीचर मिस्टर केसिंग was always annoyed, हमेशा नाराज रहते थे। और क्यों? क्योंकि जो टीचर थे, मैथ टीचर मिस्टर केसिंग, वो थे ओल्ड फॉगी। ओल्ड फॉगी मतलब क्या है? ओल्ड फैशन मैन। ओल्ड फॉगी मीन्स old foggy, old fashioned, old fashioned थे। Who teaches maths was annoyed with me for ages। Yes, after several warnings, पहले टीचर लोग वार्निंग देते हैं, जैसे कि आप लोगों को भी दिया जाता है। After several warnings, he assigned me extra homework। तो पनिशमेंट के रूप में वो मुझे क्या दिए? एक्स्ट्रा होमवर्क दिए। एक्स्ट्रा होमवर्क एज पनिशमेंट। ओके, तो एक मुझे वो एसे लिखने के लिए दिए। एन एसे वाज गिवन टू मी टू राइट। और वो एसे का टॉपिक क्या था? टाइटल क्या था? वो टाइटल ऑफ एसे था ए चैटर बॉक्स। तो चैटर बॉक्स मतलब क्या है?
टॉकटिव, एक बातूनी के बारे में लिखना था निबंध। बिकॉज यस, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, आप क्या लिख सकते हो? अरे कोई अलग टॉपिक होता, कंट्री के बारे में होता, टेररिज्म पर होता, पॉलिटिक्स पर होता, एनवायरमेंट पर होता, तो यू कैन राइट अ लॉट ऑफ थिंग्स। बट एक चैटर बॉक्स पर, एक टॉकटिव टॉपिक पर आप क्या लिख सकते हो? आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर। ओके, मैं बाद में सोचूंगी। I decided, I jotted down the title in my notebook. मैंने नोटबुक में इसके टाइटल को लिख ली and tucked means kept it in my bag and tried to keep quiet. और कोशिश की कि अब शांत रह जाए। That evening, after I had finished the rest of my homework, जब इवनिंग में मेरा सारा होमवर्क कंप्लीट हो गया, the note about the essay caught my eye. मेरा नज़र पड़ा कि भाई होमवर्क दिया गया है, टीचर मुझे होमवर्क दिए हैं पनिशमेंट के रूप में। I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. उस समय फाउंटेन पेन चल रहा था, और आप लोगों का कुछ बच्चों का आदत होता है तो उसका पीछे भाग को, अंतिम भाग को तो दबाते रहते हैं, चुबाते रहते हैं, चुबाना टिप को पेन का। Anyone could ramble on and leave big spaces between the words. कुछ लोगों का आदत होता है अगर लिखना रहता है तो क्या है, बहुत स्पेस दे करके लिख देना है ताकि कम वर्ड्स बहुत सारा स्पेस ले लेगा। मिस्टर केसिंग had assigned me and I wrote 3 pages on the topic of a chatterbox. And Mr. Casing, my math teacher, was satisfied with my essay. और जब वो पढ़े 3 पेज, वो संतुष्ट हो गए। I argued that, मैं क्या लिखी थी? मेरे निबंध के माध्यम से मैं ये लिखी थी, मैं तर्क की थी कि टॉकिंग इज ए स्टूडेंट ट्रेट, कि बात करना, बातूनी होना एक स्टूडेंट्स का ट्रेट है। ट्रेट मीन्स गुण। दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और मैं कोशिश करूँगी इसको कंट्रोल करने के लिए। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट, लेकिन मैं इसको क्योर नहीं कर सकती हूँ। आई कैन कंट्रोल, क्यों नहीं क्योर कर सकती हूँ? सिंस चूंकि माई मदर टॉक्ड as much as I did, मेरी माँ भी बातूनी थी। सो इट वॉज माई इनहेरिटेड ट्रेट, ये मेरा वंशानुक्रमिक गुण था, इसीलिए मैं इसको बंद तो नहीं, प्रिवेंट तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन कंट्रोल कर सकती हूँ। ये इनहेरिटेड ट्रेट्स था, ये वो प्रमाण की थी। मिस्टर केसिंग हैड ए गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स, जब वो पढ़े तो उनको हंसी आया, वो हंसने लगे मेरे तर्क पर। But when I proceeded to talk my way through the next lesson, when he was teaching the next lesson, I also started talking and he gave punishment the second time. तो this time वो क्या दिए? An incorrigible chatterbox. तो second title of ऐसे क्या हो गया? An incorrigible chatterbox. इनकरेजिबल मतलब क्या है? जिसका सुधार नहीं हो सकता है, दैट कैन नॉट बी करेक्टेड। तो सेकेंड टाइम मुझे मिल गया। ओके, आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर केसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स। फिर मैंने लिख करके दी। अब 2 लेसन तक अब वो कुछ मुझे कहे नहीं। यस, ड्यूरिंग द 3rd लेसन ही हैड फाइनली हैड एनफ। जब मैंने और बात करने लगी, अब तीसरा बार मुझे वो पनिशमेंट दी। तो इस बार क्या मिला? क्वाक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। अब टाइटल ऑफ ऐसे का क्या था? क्वाक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। ये 3rd ऐसे था। द 3rd ऐसे which was assigned to Annie Frank as a punishment, as an extra homework. The class roared. सारा क्लास पूरा हंसने लगा। I had to laugh too. मैंने भी हंस दी, मुझे भी हंसना पड़ा। मैं नहीं चाहती थी, फिर भी हंसना पड़ा क्योंकि सब हंस रहे थे। Though I had nearly adjusted, लेकिन यद्यपि मैं पूरा थक चुकी थी, ऊब चुकी थी। अरे एक ही टॉपिक पर मैं क्या लिखूं, कितना लिखूं? माई इंजेन्युइटी मतलब पावर ऑफ क्रिएटिव। अब मैं कितना क्रिएटिविटी करूं, कहाँ से क्रिएट करूं? ऑन द टॉपिक ऑफ द चैटरबॉक्स, द सेम चैटरबॉक्स
One is chatterbox, second is incorrigible chatterbox, then quack, 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 said Mr. Chatterbox. The topic was same. So how can I create? So it was time to come up with something else, something original. My friend Sani, उनका एक दोस्त थी, उसका नाम क्या था? Sani. Annie's friend Sani, who was a good composer of poem. वो बहुत पोएम अच्छी लिखती थी. She was expert in verse, वो कविता में निपुण थी. So this time she extended her hand to me to help in this topic. उन्होंने मुझे बोली कि you should not disturb, you should not be upset, I would help you. Okay? So by her help, of this time I wrote a poem, complete poem, on the topic of quack, 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 said Mistress Chatterbox. Okay? क्योंकि मिस्टर केसिंग ने हर बार प्रयास कर रहे थे मुझे इंसल्ट करने के लिए. मिस्टर केसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले ए जोक ऑन मी, क्योंकि मुझे बार बार एक ही टॉपिक देना उनका इरादा था कि मुझे परेशान करना, मुझे ह्यूमिलेट करना, रिडिकुलस करना. बट आई वुड मेक श्योर द जोक वाज ऑन हिम. लेकिन मुझे लगा कि अगर मैं ये कविता को लिख दूंगी तब वो उन पर ही उल्टा भारी पड़ जाएगा. आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल. इट वॉज अबाउट ए मदर डक. टॉपिक क्या था? एक मदर डक था और फादर स्वान. ओके, दोनों के क्या थे ना? डकलिंग्स थे. कितने डकलिंग्स थे? 3 डकलिंग्स थे. दोनों के 3 बच्चे थे, 3 डकलिंग्स. लेकिन फादर स्वान बाइट दीज 3 डकलिंग्स टू डेथ. उनको काटते काटते ये तीनों डकलिंग्स को मार दिया. कौन? फादर स्वान. और रीजन क्या है? बिकॉज दे वर ओनली क्वैकिंग. सिर्फ वो क्वाक क्वाक कर रहे थे, सिर्फ वो बक बक कर रहे थे, सिर्फ वो बात कर रहे थे, जिसके कारण फादर स्वान ने बीइंग क्रूएल, अपने सारी क्रूरता का हद पार करते हुए ये तीनों डकलिंग्स को वो चोंच से मार मार करके खत्म कर दिया था. लकीली मिस्टर केसिंग टुक द जोक द राइट वे. अब मिस्टर केसिंग ने समझ गए, रियलिटी को समझ गए, ये जो छिपा हुआ रहस्य को समझ गए, छिपा हुआ भावना को, हिडन फीलिंग्स को. नाउ मिस्टर केसिंग अंडरस्टूड. ही रेड पोएम टू द क्लास. वो क्लास में पूरे पढ़ करके सुनाए, एडिंग हिज ओन कमेंट्स, अपना कमेंट्स भी दिए, एंड टू सेवरल अदर क्लासेस में भी दिए, बताए. सिंस देन, तब से आई हैव बीन अलाउड टू टॉक. मुझे परमिशन मिल गया बोलने के लिए. इसका मतलब मुझे अब पनिशमेंट नहीं मिला. एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क. ऑन द कंट्रारी, बल्कि मिस्टर केसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दिस. वो अपने एटीट्यूड को बदल दिए, क्योंकि वो किस प्रकार के आदमी थे? ही वॉज एन ओल्ड फॉगी. मैंने बताया था ओल्ड फैशन थे. वो अपने एटीट्यूड को बदल दिए और वो एक जोकुलर पर्सन बन गए और हमेशा हंसाते थे. सो स्टूडेंट्स, इट वॉज ऑल अबाउट from the diary of Annie Frank. Now your topic is complete. I hope you will not face any kind of difficulty in this lesson. So thank you students. In the next video, I will teach you the next topic. Thank you.